Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the glycoprotein. What are the glycoprotein? Glycoproteins are the proteins to which the oligosaccharide chains are covalently attached. These are the most abundant proteins. Proteins are also present in our body, but the majority of the classes of the proteins are glycoprotein. Like if we gave an example of globular protein which are present in the human plasma, almost all are almost all are glycoprotein in nature. The exception is albumin. Albumin is an exception. Albumin is not the glycoprotein, but the rest of the plasma protein which are globular protein, the class of globular protein, are almost the glycoprotein in nature. Glycoproteins are different from the proteoglycans in the several different ways. What are these differences? Number one, glycoprotein contain variable amount of the carbohydrate content. What does it means? It means that glycoprotein may contain 4% of the carbohydrate, may contain 60% of the carbohydrate, or there is a variation in the carbohydrate content of the glycoprotein. While in proteoglycans typically consist of approximately 95% of the carbohydrate, or greater than 80% of the carbohydrate. While number second difference is that, and the variation in the carbohydrate content, one example is there, immunoglobulin G contain less than 4% of the carbohydrate. Number second difference, glycoprotein may or may not be negatively charged, while proteoglycans are always negatively charged. Number three difference is the glycan component of the glycoprotein is short and branched, while in proteoglycan the glycan component, mean the carbohydrate components, is long and unbranched. Glycoprotein do not contain the typical disaccharide unit, while in proteoglycan there is a presence of the disaccharide unit. Glycoprotein may perform function in the cell, in the cell membrane, or outside of the cell, while proteoglycan typically or primarily perform function in the extracellular matrix. So these above aforementioned are the differences between the proteoglycans and the glycoproteins. Now there is a several functions of the glycoprotein which you can see on the screen. Glycoproteins help in the cell surface recognition, such as by the hormones, enzymes, and viruses, bacteria, etc. Glycoproteins play an important role in the cell surface antigenicity, means the blood group antigens. While glycoproteins are also the component of the extracellular matrix, you know that collagen is a glycoprotein, so it is a part of the extracellular matrix. So glycoproteins are the part of the extracellular matrix, while mucins of the gastrointestinal and urogenital tracts, where they act as a protective biological lubricants, they are also the glycoprotein in nature. So these are the different functions of the glycoprotein. Now we will move toward the structure of the glycoprotein. You know that there is a two component, one is the protein component and other is oligosaccharide or the carbohydrate component. While the carbohydrate component in the glycoprotein is usually oligosaccharide, mean short and branched in structure. So the oligosaccharide components of the glycoprotein are generally branched heteropolymers composed of similar carbohydrate content as that of the proteoglycan, but they additionally contain the specifically the N-acetyl nuraminic acid. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लीकेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बिहाइंड दिस लिंकेजेस, कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिंकेज बनता है, एज वी सी दैट इन प्रोटियोग्लाइकन्स देयर इज़ अ ओ linkage between the hydroxyl group of the serine and the xylose, while in glycoproteins there are the different type of the linkages, like the O linked linkage, N linked oligosaccharide, or an O linked oligosaccharide. अब आपको पता है कि हमारे पास जो
ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटियोग्लाइकन्स थे उनके अंदर हमारे पास सिर्फ ओ लिंक्ड लिंकेज था। वाइल हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन आ जाते हैं इसके अंदर डाइवर्स यानी मीन्स वन और मोर लिंकेजेस होते हैं। यहाँ तो हमारे पास एन लिंक्ड लिंकेज हो सकता है या ओ लिंक्ड। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? एन लिंक्ड होगा तो हमारे पास प्रोटीन के अंदर जो है स्पेराजीन एक रेजिड्यू होगा, उसके अमाइड के साथ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट चेन हमारे पास अटैच हो जाएगी। वाइल ओ लिंक्ड होगा तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सीरीन और इन सम इंस्टेंसेस थ्रियोनीन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ कार्बोहाइड्रेट चेन जो है वो अटैच हो जाएगी। अब आ जाते हैं ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स के ऊपर। ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स जो मेनली परफॉर्म फंक्शन करते हैं वो या तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर करते हैं या तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर करते हैं। और उनकी उसने एग्जांपल दे दी है कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप आरबीसीज के सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं, जो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेंट्स ब्लड ग्रुप हमें डिटर्मिन करने में हेल्प करते हैं, उसकी उन्होंने एग्जांपल दे दी है कि अगर एक ब्लड ग्रुप होगा तो उसके अंदर जो एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन हमारे पास प्रेजेंट होगा। टर्मिनल शुगर जो ग्लाइकन पे होगी वो एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन। और अगर बी ग्रुप होगा तो वो हमारे पास सिंपली ग्लैक्टोज होगी। अगर इट इज़ निदर एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन नॉर ग्लैक्टोज, मतलब कि अगर वो ना ही एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन मिले और ना ही हमारे पास ग्लैक्टोज मिले तो फिर हम कहेंगे कि ब्लड ग्रुप ओ है। और इतना ही सिर्फ ओ लिंक का याद रखने वाला है कि ओ लिंक की जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं वो यहाँ तो हमारे पास सेल के अंदर रह के सेल मेम्ब्रेन का पार्ट रह के फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में फंक्शन परफॉर्म करती हैं। वाइल एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड जो होती हैं उनके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, हाई मेनोज ओलिगोसैकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड। अब ये उन्होंने डायग्राम शो की हुई है लिपनकॉर्ड के अंदर। इसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये जो ब्लू वाला एरिया है ये दोनों में सेम है, यानी एन हाई मेनोज ओलिगोसैकेराइड और हमारे पास कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड दोनों में ये देखें कि पेंटासैकेराइड यूनिट जो है ब्लू वाला एरिया ये दोनों में सेम है। लेकिन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है बाद के अंदर जो डिफरेंट रेजिड्यूज अटैच हुए हैं। जो नीचे वाला है, नीचे वाली डायग्राम है उसके अंदर शो किया हुआ है कि ये हाई मेनोज ओलिगोसैकेराइड है, इसके अंदर प्राइमरीली मेनोज है। वाइल जो ऊपर वाली डायग्राम है उसके अंदर शो किया है कि इसके अंदर पेंटासैकेराइड यूनिट के अलावा जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास मेनोज नहीं है बल्कि डिफरेंट यूनिट्स हैं, लाइक एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है, ग्लैक्टोज है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है, फ्यूकोज है। तो ये डिफरेंस आ जाता है हमारे पास इनके दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर। सो दैट्स व्हाई वी कॉल एज हाई मेनोज ओलिगोसैकेराइड एंड द कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड। अब हमारे पास जो प्रोटीन की पहले हमने करनी है सिंथेसिस, यानी ग्लाइकोप्रोटीन जो है उसकी सिंथेसिस। ग्लाइकोप्रोटीन की जो हमारे पास सिंथेसिस होती है, अच्छा जो ग्लाइकोप्रोटीन की हमारे पास सिंथेसिस होती है वो सिमिलर टू डैट ऑफ द, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, प्रोटीन बनानी है। एक कंपोनेंट प्रोटीन है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है। सबसे पहले हम बना लेते हैं प्रोटीन। जो हमारे पास प्रोटीन होती है वो हमारे पास किस तरीके बनेगी आपको पता है। जो सेल के अंदर जिन those proteins which are destined to function inside the cell, these are synthesized on the cytosolic फ्री राइबोसोम्स। मतलब जो प्रोटीन्स या जो इंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स इंजाइम्स वर्चुअली प्रोटीन्स ही होते हैं। सो जो प्रोटीन जिन्होंने सेल के अंदर रह के फंक्शन परफॉर्म करना है वो साइटोसोलिक राइबोसोम्स के अंदर सिंथेसाइज होती हैं। वाइल ऑल दोज प्रोटीन दैट आर डिस्टाइंड टू फंक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन और द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इन द लाइसोसोम्स, दे आर सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। अब सवाल ये बनता है कि प्रोटीन को कैसे पता लगेगा कि यहाँ मैंने लाइसोसोम के अंदर जाना है, यहाँ मैंने सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बनना है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाना है। तो हमें इन प्रोटीन्स के अंदर एक लीडर सीक्वेंस मिलता है। दीज प्रोटीन्स हैव द स्पेशल टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस विच आर नोन एज द लीडर सीक्वेंस। This leader sequence addresses serve as a molecular addresses targeted to the targets protein to their original destination। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस आ गया है या जिसे मैं लीडर सीक्वेंस कह रहा हूँ, ये हमारे पास जो प्रोटीन है उसको बताता रहेगा तुमने इधर जाना है और इधर जाके तुमने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। ये मॉलिक्यूलर एड्रेसर के तौर पे काम करेगा।
और प्रोटीन को टारगेट कर देगा उसकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन के ऊपर। अब जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है, अब उसके अंदर फिर हमारे पास आगे आ जाता है कि ओलिगोसैकेराइड के उसके साथ ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोटीन बन गई, या प्रोटीन के साथ हमारे पास क्या होनी है, ग्लाइकोसाइलेशन होनी है। अब जो ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड हैं, यहाँ पे एन लिंक्ड का ये दिखाया हुआ है। अच्छा, जो ओ लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड है उनका सिमिलर जो सिंथेसिस है वो बिल्कुल सेम होती है एज डेट ऑफ द ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन। और जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है वो आपको पता है बिल्कुल सेम, आपने जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स में पढ़े थे वो यहाँ पे यूज़ होंगे, लाइक यूरिडिन डाइफॉस्फेट एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, यूरिडिन डाइफॉस्फेट एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, यूरिडिन डाइफॉस्फेट गैलेक्टोज, यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, जो हमने उधर पढ़े थे सिंथेसिस के दौरान अमाइनो शुगर की सिंथेसिस के अंदर। और एसिडिक शुगर की एसिडिक शुगर्स तो नहीं हमारे पास होंगी, खैर हमारे पास अमाइनो शुगर जो हमने पढ़ी थी वो अमाइनो शुगर्स ही हमारे पास इधर मौजूद होंगी। जितनी हमने उधर पढ़ी थी वो सारी इधर ही, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगी। वाइल अब हमारे पास आपको पता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो भी दो तरह की हैं, ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स और एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास क्या होगा कि सिमिलर टू डेट ऑफ द ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज हुई, फिर हमारे पास क्या हुआ कि वो गोल्जी में चली गई। गोल्जी के अंदर हमारे पास जाके ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज एंजाइम से उसने उसके ऊपर हमारे पास सबसे पहले तो सीरीन रेजिड्यूज़ के साथ पहले बॉन्ड बनाया, और फिर चेन की लेंथ क्या कहते हैं, चेन जो है वो हमारे पास उसकी लेंथ बढ़ने लग गई बाई द सिक्वेंशियल एडिशन ऑफ द डिफरेंट ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज़ और द कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज़ बाय द मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। जो गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर एंजाइम्स थे उन्होंने इसकी चेन की इलांगेशन कर दी और इस तरीके हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बन गई। अब हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन बनी है ये तो हमारे पास बन गई ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन। पहले हम एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन कर लेते हैं, फिर हम ये डायग्राम करेंगे कि ये जो प्रोटीन बन गई है इसने कहाँ कहाँ पे जाके अपने फंक्शन परफॉर्म करनी है। एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन का थोड़ा सारा हमारे पास जो मैकेनिज़्म है वो अलहदा है, सिंथेसिस का मैकेनिज़्म अलहदा है। वो किस तरीके सिंथेसिस का मैकेनिज़्म है कि इसकी सिंथेसिस के लिए इसको एक डोलिकोल एक इंटरमीडिएट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल से ना सिंथेसाइज होता है। एक लिपिड है जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो ये यहाँ पे शो कराया हुआ है उन्होंने। अब ये हमारे पास क्या करता है डोलिकोल, कि आपको पता है हमने अभी ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात की है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स की और ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स की। उधर हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स के साथ डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाती है, ग्लाइकोसाइलेशन होती है। लेकिन इधर एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन के केस के अंदर ये इस तरीके नहीं होता। इधर क्या होता है कि डोलिकोल चाहिए होता है। पहले डोलिकोल के ऊपर ओलिगोसैकेराइड चेन की सिंथेसिस होगी, फिर डोलिकोल से हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारे पास प्रोटीन की तरफ, वो जो चेन होगी वो डायरेक्टली बनी बनाई ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो ये छोटा सा एक डिफरेंस आ जाता है कि एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस के लिए the synthesis of the N-linked glycoprotein requires a lipid of the rough endoplasmic reticulum in the phosphorylated form which is known as the डोलिकोल पायरोफॉस्फेट। अब जो डोलिकोल पायरोफॉस्फेट है वो सबसे पहले हमारे पास क्या करेगा कि अपने ऊपर ओलिगोसैकेराइड की चेन एक सिंथेसाइज करवाएगा। ओलिगोसैकेराइड की एक चेन सिंथेसाइज होगी, फिर हमारे पास एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है प्रोटीन ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। प्रोटीन ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज, इसका नाम बता रहा है कि प्रोटीन है ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। ओलिगोसैकेराइड जो है पायरोफॉस्फेट से उतर के हमारे पास कहाँ पे चले जाएगा, ओलिगोसैकेराइड की जो चेन बनी थी हमारे पास ये पायरोफॉस्फेट से उतर के हमारे पास चली जाएगी अमाइड ग्रुप ऑफ द एस्पैराजीन साइड चेन रेजिड्यू ऑफ द प्रोटीन। जो प्रोटीन के अंदर एक एस्पैराजीन रेजिड्यू होगा, एस्पैराजीन अमाइनो एसिड होगा, उसके ऊपर जो अमाइड ग्रुप है उसके साथ जाके ये चेन जो है अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके हमारे पास एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन के हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन होती है। एक इधर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट आपने याद रखना है कि जो ट्यूनिकामाइसिन एक कंपाउंड है, ड्रग है, जो हमारे पास क्या करती है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन को इनहिबिट कर देती है। एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन को ट्यूनिकामाइसिन इनहिबिट कर देती है। अब आप देखें कि हमारे पास एन लिंक्ड जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एक किस्म की सिंथेसाइज हो गई है। इसकी फर्दर ट्रिमिंग होगी जैसे वो लिमोन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करेगी, आपको पता है वो फिर वेजिकल बनेगा। वेजिकल हमारे पास आ जाएगा गोल्जी अपरेटस के बाद। गोल्जी अपरेटस में अब दूसरा काम होना है। हमने जो
कहा था कि जो एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन है या तो वो हाई मेनोज ग्लाइकोप्रोटीन होगी या तो हमारे पास वो कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होगी। अब हमारे पास कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन किस तरीके बनेगी कि जैसे गोल्जी अपरेटस में वो एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन आई, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी और एडिशन ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, वो कौन से थे वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन, फ्यूकोज, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ग्लैक्टोज, वो डिफरेंट यूनिट्स जो हैं मोनोसेक्राइड यूनिट्स वो अटैच होंगे और कम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन को सेंथिसाइज करवा देंगे। वाइल हमारे पास अगर उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती यानी एडिशन नहीं होती, कोई मोनोसेक्राइड यूनिट्स की फर्दर एडिशन नहीं होती, तो वो सिमिलरली उसकी फर्दर थोड़ी सारी ट्रिमिंग होगी और वो इसी तरह हाई मेनोज ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास बन जाएगी। ये डिफरेंस है हमारे पास एन लिंक्ड और हमारे पास ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर, कि ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमें कोई डोलिकोल नहीं चाहिए होता, डायरेक्टली प्रोटीन के साथ ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स नोन एज ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेज। वाइल इन एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस वी रिक्वायर अ लिपिड ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ नोन एज द डोलिकोल पायरोफॉस्फेट। और डोलिकोल पायरोफॉस्फेट के ऊपर पहले वो ओलिगोसैकेराइड चेन सिंथेसिस होगी, फिर वो जाके ओलिगोसैकेराइड चेन जो है वो एक ट्रांसफ़र हो जाएगी प्रोटीन को। सो इस तरीके ये डिफरेंस आ जाता है हमारे पास ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर और एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर। अब दोनों ने प्रोटीन्स बना दी। अब गोल्जी अपरेटस से आपको पता है कि वेजिकल्स की फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, सिक्रीटरी वेजिकल्स की फॉर्म के अंदर वो प्रोटीन वहाँ से निकल जाएगी। अब प्रोटीन के 3 फेट हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के अब 3 फेट हैं। मैंने आपको कहा था कि जो ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो या तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर काम करेंगी या सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, लेकिन जो एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन है वो 3 जगह जा सकते हैं, या तो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन सकती हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, या वो लाइसोसोम के पास जा सकते हैं। ये एक डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स है, ये आपने याद रखना है कि एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो लाइसोसोम के पास जा सकती हैं, या हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन सकती हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जा सकते हैं। वाइल जो हमारे पास ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन है या तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में काम कर सकती हैं या वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन सकती हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वो प्रोटीन खाली सेंथिसाइज हुई, वो आके हमारे पास सिक्रीटरी वेजिकल की फॉर्म में गोल्जी अपरेटस के ऊपर। गोल्जी अपरेटस के अंदर दोबारा उसके जो अभी आपको बताया कि प्रोसेसिंग होगी, फर्दर ट्रिमिंग होगी हमारे पास, वो यहाँ पे जब आ गई तब यहाँ से प्रोसेस हो के फर्दर बिल्कुल रेडी हो के हमारे पास वो सिक्रीटरी वेजिकल की फॉर्म में गोल्जी अपरेटस से भी निकल गई। अब गोल्जी अपरेटस से निकल गई, अब इसके 3 फेट हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि वो सेल के अंदर रहेगी नहीं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में चली जाएगी। तो ये वेजिकल आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन के पास। सेल मेम्ब्रेन के पास आके ये क्या करेगा, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा और अपने कंटेंट्स जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, यानी प्रोटीन जो है ग्लाइकोप्रोटीन, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज़ हो जाएगी। वाइल अगर इसने बनना है सेल मेम्ब्रेन का पार्ट, तो ये जो सिक्रीटरी वेजिकल बना है गोल्जी मेम्ब्रेन से, ये पहले इसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाएगी और यही सिक्रीटरी वेजिकल फिर बाद में जाके फ्यूज़ हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के साथ। जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास ये प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी। वाइल तीसरा फंक्शन है एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स का कि वो लाइसोसोम के पास जाएगा सिक्रीटरी वेजिकल, उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा और वो काम करेगा लाइसोसोमल एसिड हाइड्रोलेसिस का। ये दीज आर द डिफरेंट 3 फेट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स इन द डिफरेंट लोकेशन, लाइक इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, लाइक इन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बिकम द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और इन द लाइसोसोम्स एज द enzymes. There is a mechanism for the transferring or the targeting of the N-linked glycoproteins to the lysosome। अब हवा में उड़ के तो नहीं ना चली जाती कि N-linked ग्लाइकोप्रोटीन है वो लाइसोसोम के पास किस तरीके चली जाती हैं। वो एक मैकेनिज्म है कि हमारे पास N-linked ग्लाइकोप्रोटीन बन गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो चली जाएगी गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस हैव अ स्पेसिफिक एंजाइम नोन एज द फॉस्फोट्रांसफरेज विच कॉजेज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द मेनोज ऑन द कार्बन 6 of one or more of the one, यानी इसका one of the menosyl residues or more than one menosyl residues, मतलब कि कार्बन 6 ऑफ द मेनोज के ऊपर फॉस्फोरिलेशन कर देगी। अब ये एक मेनोज की भी फॉस्फोरिलेशन हो सकती है या ज़्यादा सारी मेनोज जो हैं हमारे पास
ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर जो हमारे पास ज़्यादा मेनोज के जो रेजिड्यूज़ हैं उनके ऊपर भी हमारे पास फास्फोराइलेशन हो सकती है। तो हमारे पास ये फास्फोराइलेशन कराने का मकसद क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो फास्फोराइलेशन हुई है उसके लिए फास्फेट ट्रांसफ़र किया हमारे पास यूरिडिन डाइफॉस्फेट एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन ने जो है वो फास्फेट अपना ट्रांसफ़र कर दिया है, डोनेट कर दिया है। अब इस फास्फोराइलेशन का हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्जी अपरेटस देर इज़ अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विच बाइंड द मेनोज 6 फास्फेट। अगर फास्फोराइलेशन होती है तब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मेनोज 6 फास्फेट बन गया, रेजिड्यू बन गया। अब हमारे पास जो गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन है उधर हमारे पास उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जो मेनोज 6 फास्फेट को बाइंड कर लेता है। जैसे ही मेनोज 6 फास्फेट को बाइंड करता है तो गोल्जी अपरेटस को पता लग जाता है इस जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है इसने जाके काम करना है लाइसोसोम के अंदर, तो वो उसको सिक्रीटरी वेजिकल ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में लाइसोसोम की तरफ भेज देता है गोल्जी अपरेटस। सो फास्फोराइलेशन कराने का ये सिग्निफिकेंस है। अब उसको गोल्जी अपरेटस क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में बना देता है। ट्रांसपोर्ट वेजिकल चले जाता है लाइसोसोम के पास, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है और जो रिसेप्टर है वो दोबारा हमारे पास कहाँ पे चले जाता है, हमारे पास रिसाइकल्ड हो जाता है और गोल्जी मेम्ब्रेन में दोबारा आ जाता है। वाइल जो कंटेंट था हमारे पास एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन थी वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाती है लाइसोसोम की तरफ। अब यहाँ पे एक क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है आई सेल डिजीज़, जिसे कहते हैं हम स्पेसिफिकली आई सेल डिजीज़। आई सेल डिजीज़ ये जो हमारे पास गोल्जी मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम है फास्फोट्रांसफेरेज, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, आई सेल डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन द Golgi apparatus which is responsible for the phosphorylation of mannose at the carbon 6। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो इंजाइम्स ने जाना था लाइसोसोम के पास वो वहाँ पे टारगेट नहीं हो सकेंगे, तो इवेंचुअली वो इंजाइम्स जो हैं वो प्लाज्मा के अंदर आ जाएंगे। अगर टारगेट नहीं होंगे तो वो प्लाज्मा में आ जाएंगे। प्लाज्मा लेवल ऑफ दीज सेलुलर इंजाइम्स आर वेरी हाई एंड ऑल्सो दीज इंजाइम्स आर ऑल्सो फाउंड इन द यूरन। जब इन यूरन और प्लाज्मा के अंदर हम इंजाइम ऐसे करेंगे पेशेंट का और हमारे पास जो यूरन का एनालिसिस करेंगे तो इंजाइम्स बहुत हाई मिलेंगे, हमारे पास उनका इंजाइम्स का लेवल हाई मिलेगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इंजाइम्स के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है कि इंजाइम्स हमारे पास आ गए हैं प्लाज्मा के अंदर, बल्कि इंजाइम की सिंथेसिस में कोई डिफेक्ट नहीं, बल्कि जो टारगेटिंग प्रोसेस है कि जिन्होंने इंजाइम्स ने लाइसोसोम के पास जाना था वो लाइसोसोम के पास नहीं गए बल्कि वो सेल में वो प्लाज्मा में आ गए हैं, जिसकी वजह से वो यूरन में रिलीज़ हो गई हैं। तो इस डिजीज़ से हमारे पास क्या होता है कि जो इंजाइम्स हमारे पास जाने होते हैं लाइसोसोम के अंदर वो नॉर्मली वो नहीं जाते। तो लाइसोसोम में एंजाइम्स नहीं जाएंगे तो लाइसोसोम में ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की भी डिग्रेडेशन होती है। लाइसोसोम में हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स की भी डिग्रेडेशन होती है। लाइसोसोम में हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स की भी डिग्रेडेशन होती है। अब इंजाइम्स डेफिशिएंट है तो इन तीनों कंपाउंड्स की हमारे पास क्या होगी कि डिग्रेडेशन नहीं होगी। जब डिग्रेडेशन नहीं होंगे तो लाइसोसोम्स के अंदर ये कंपाउंड्स हैं वो कम्युलेट करने लग जाएंगे और जिसकी वजह से हमारे पास रेंज ऑफ द सिम्टम्स मिलेंगे। इसके अंदर जो सिम्टम्स मिलते हैं दी सिम्टम्स आर वेरी सिमिलर टू द म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस और स्फिंगोलिपिडोसिस। सो इट इज़ आल्सो नोन एज द म्यूकोलिपिडोसिस। म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस होते हैं कि ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स की डिग्रेडेशन के अंदर जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है उसे कहते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस। वाइल द स्फिंगोलिपिडोसिस कहते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स की डिग्रेडेशन के अंदर जो जेनेटिक डिफेक्ट आते हैं उसको स्फिंगोलिपिडोसिस कहते हैं। तो इसके सिम्टम्स इन दोनों से मिलते जुलते हैं, तो हम इसको कह देते हैं कि इसको म्यूकोलिपिड्स है। ये के सिम्टम्स को मिला के हमने कह दिया कि म्यूकोलिपिड्स यानी कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड्स से की डिग्रेडेशन जब नहीं होती तो उनसे सिम्टम्स इसके मिलते जुलते हैं। देख लें हमारे पास जो कोर्स फेशियल फीचर्स मिलते हैं हमारे पास, और रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट, स्केलेटल अबनॉर्मलिटी, स्वेयर साइकोमोटिक, मेंटल इम्पेयरमेंट हमारे पास मिलती है। तो डेथ हमारे पास हो जाती है चाइल्डहुड के अंदर। क्यों डेथ हो जाती है? कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो किसी पेशेंट को अगर आई सेल डिजीज़ है तो उसकी डेथ अर्ली इन द चाइल्डहुड में हो जाएगी और इसका कोई क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है। और आई सेल डिजीज़ इसलिए कहते हैं कि जो पेशेंट के सेल्स देखे जाते हैं तो इनके अंदर लार्ज इंक्लूजन सेल बॉडीज़ मिलती है, तो उससे इंक्लूजन सेल बॉडीज़ मिलने की वजह से इसका नाम रख दिया गया आई सेल डिजीज़। अब एक और है कि
ग्लाइकोप्रोटीन की अब डिग्रेडेशन, ग्लाइकोप्रोटीन की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि लाइसोसोम्स के अंदर ही डिग्रेडेशन होती है। अब यहाँ पे सिर्फ याद करने वाले इतनी बात है कि ग्लाइकोप्रोटीन की भी अगर डिग्रेडेशन लाइसोसोम में ना हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइडोसिस, ड्यू टू द डेफिशिएंसीज ऑफ द एंजाइम विच कॉजेज द नॉर्मल degradation of the glycoproteins. So glycoprotein accumulate in the lysosome, so this condition is known as the oligosaccharidosis. उससे एक रिलेटेड डिजीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी बन सकता है या एससीक्यू में भी बन के आ जाए कि अल्फ़ा मैनोसाइडोसिस टाइप 3, अल्फ़ा मैनोसाइडोसिस टाइप 3, इसके अंदर अल्फ़ा मैनोसाइडेज इंजाइम डेफिशिएंट होता है जो मेनोस को जिसने रिमूव करना होता है। अब अल्फ़ा मैनोसाइडेज इंजाइम डेफिशिएंट है तो इसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि सिमिलर टू द बुक के आखिर में ये लिखा हुआ है, जहाँ पे ये हेडिंग भी दी हुई है कि लाइसोसोमल ग्लाइकोप्रोटीन डिग्रेडेशन। तो ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइडोसिस, ये सारी जो कंडीशन होती हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये जो डेफिशिएंसीज हमारे पास इंजाइम्स की होती हैं, तो इसके अंदर अब हमारे पास क्या होता है कि अल्फा मैनोसाइडेज इंजाइम डेफिशिएंट होता है। इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर टू डैट ऑफ द हर्लर सिंड्रोम मिलते हैं, लेकिन एक इसके अंदर डिफरेंशिएटिंग फीचर हमें ये मिलता है अल्फ़ा मैनोसाइडेज इंजाइम की डेफिशिएंसी में या अल्फ़ा मैनोसाइडोसिस में कि जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, वीकेंड इम्यूनिटी के साथ आता है। वाइल हर्लर सिंड्रोम के अंदर हमने पढ़ा है कि इम्यूनिटी वीक नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो पेशेंट आपके साथ सामने आएगा प्रेजेंट करेगा उसके अंदर इम्यून डेफिशिएंसी भी होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरा उसके यूरिन के अंदर मेनोज रिच जो ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा मिलेंगे। डायग्नोसिस अगेन हम जितनी भी डिजीज़ हैं, हर्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम, स्लाइ सिंड्रोम और ये अल्फ़ा मैनोसाइडोसिस, इनका जो ट्रीटमेंट वो डायग्नोसिस करते हैं वो इंजाइम ऐसे करा लेते हैं कि वेदर द इंजाइम इज़ प्रेजेंट और नॉट, नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है हमारे पास वो सिंड्रोम डेफिशिएंसी हमारे पास हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द glycoproteins and the glycose aminoglycans, and I already made a video on different separate video on the lecture of the glycose aminoglycan. So this is all about the glycoproteins. This is the end of the carbohydrates unit. Hope you will understood well. Thank you very much.